Hello everyone. Today I am here with a new topic that is mini mental status examination, that is commonly known as MMSC. Mini mental status examination is given by the Foleston et al. In 1975. Introduction. Mini mental status examinations is the most commonly used instrument or tool for screening the cognitive functions. When the cognitive function is disturbed of a person or a human being due to the psychiatric illness or due to the mental illness, in that time we use MMSC to assess the cognitive functions of a human being or a person. Mini mental status examination क्या है? It offers a quick and simple way to quantify cognitive functions. It is a simple method to assess the cognitive functions of a person, and how much cognitive loss has been occurred is assessed, or it is screened by the mini mental status examination. It tests the individual's orientation, attention, calculation, recall, language, and motor skill. This is the important component of a mini mental status examination. It is used on every continent with all cultures and is translated in many languages. जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है यह हर जगह हर एवरी कॉन्टिनेंट में एवरी वर्ल्ड के एवरी कॉर्नर्स में इसको यूज़ किया जाता है और इट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज. इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द हिंदी, इंग्लिश एंड एनी another language of the world. So, what is the advantages of the mini mental status examination? There are a lot of advantages of the mini mental status examinations when we use it to assess the cognitive function of a patient. For example, it required only equipment, watch, paper and pencil. When we have the three instrument, watch, paper and pencil, in that time we can do the mini mental status examination. There is no need to interpret the score, and there is no need or there is no requirement for the little critical thinking. It is easy to administer, quick to administer. It takes only 10 minutes or more than 10 minutes, 10 to 15 minutes. MMS is more sensitive है in detective the cognitive impairment than the use of the informal questioning. कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट के साथ informal questioning करते हैं, उन क्वेश्चन से हम कुछ भी असेस नहीं कर पाते हैं, तो इन दैट टाइम मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो एक सिंपल क्वेश्चनरीज है प्रिपेयर की गई है वो क्या होती है, मोर यूजफुल होती है टू असेस द कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट. हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दैट शुड बी केप्ट इन आवर माइंड व्हेन वी आर डूइंग अ मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, it is important to make the patient comfortable, provide the comfortable position to the patient, provide the comfortable environment, maintain privacy, establish rapport with the patient, praise the patient success, and that helps to maintain the rapport with in acceptable manners. Persisting on items of the patient find difficult should be avoided. कि इस तरह की items, ऐसे questions जिनके ऊपर क्या है कि पेशेंट को कंफर्टेबल फील नहीं होता है आंसर देने के लिए, तो वैसे क्वेश्चंस को क्या करना है, हमने अवॉइड करना है. टेस्ट, ईच सेक्शन ऑफ द टेस्ट, जितने भी सेक्शंस है टेस्ट के, जो भी हमने कंपोनेंट इसकी डिस्कस करेंगे हम आगे जाके कि व्हाट इज ओरिएंटेशन, व्हाट इज रिकॉल, व्हाट इज अटेंशन. तो जितने भी क्वेश्चंस है उस टेस्ट में ईच क्वेश्चंस क्या है, ईच क्वेश्चंस गिव्स 1 मार्क्स और द इंडिविजुअल रिसीव्स 1 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट आंसर. To give the examination, seat the individual in a quiet, well ventilated room, ask or him a simple question in simple way, listen carefully to the patient. Don't time the test but score it right way. To score, add the number of the correct response. The maximum score of the mini mental status examination is the 30 point. A score below 20 usually indicate cognitive impairment. कभी कभी MCQ के क्वेश्चंस में इसमें भी आ जाता है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जब मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का स्कोर क्या है, लेस देन 20 होगा, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट.
ये कुछ कंपोनेंट है एमएमएससी की। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन डाटा है कि जो भी हम डाटा नर्सिंग प्रोसेस में लिखते हैं पूरा का पूरा डाटा एमएमएससी में भी कंप्लीट किया जाता है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट इज ओरिएंटेशन टू टाइम। जब हम पेशेंट से बात करते हैं ओरिएंटेशन टू टाइम, इन दैट टाइम वी आस्क व्हाट इज टूडेज डेट। डेट क्या है, व्हाट इज द मंथ, व्हाट इज द ईयर एंड व्हाट इज द डे ऑफ अ वीक टुडे एंड व्हाट इज द सीजन। इस तरह से हम ये क्वेश्चन पूछते हैं। पेशेंट का जो एजुकेशन लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन पूछते हैं। फिर है नेक्स्ट है कि ओरिएंटेशन टू प्लेस, व्हाट कंट्री are we in, what state are we in, what city are we in, which building it is, which floor it is। तो ये हो गई जब ओरिएंटेशन टू टाइम के अगर पेशेंट क्या है कि 5 के 5 क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट देता है तो ही और शी विल गेट द 5 स्कोर। और वैसे ही कि इसके ओरिएंटेशन टू प्लेस के 5 के 5 आंसर करेक्ट वे में देता है तो दैट विल आल्सो स्कोर द 5 मार्क्स। इस तरह से हम क्या करते हैं, स्कोरिंग करते हैं इसकी। इमीडिएट रिकॉल, इमीडिएट रिकॉल में हम क्या करते हैं कि पेशेंट से हम 3 अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट के नाम बताते हैं पेशेंट को, और पेशेंट को क्या कहते हैं कि स्लोली स्लोली बोलते हैं अबाउट 1 सेकेंड फॉर ईच, और एक वर्ड बोलने के लिए हम 1 सेकेंड लगा लेते हैं। और एंड व्हेन सेड ऑल द वर्ड्स आस्क हिम और हर टू रिपीट देम द फर्स्ट रेपिटेशन डिटरमाइन द स्कोर। अगर वो पहली रेपिटेशन में बॉल फ्लैग ट्री सेम सीक्वेंस में रिपीट करता है दैट विल गिव द 3 स्कोर टू द पेशेंट। अगर क्या है कि सीक्वेंस उसकी आगे पीछे हो जाती है तो हम पेशेंट को 3 मार्क्स नहीं देंगे। अटेंशन, आस्क द इंडिविजुअल टू बिगिन विद 100 एंड काउंट बैकवर्ड। पेशेंट से बोलेंगे कि पेशेंट अगर 100 में से 7 को उसने माइनस करना है और उसे 5 टाइम्स ऐसा करने के लिए हम कहेंगे। जैसे 93 लिखता है, उसके बाद उसने 86 मेंशन किया है, 79 मेंशन किया है, 72 है, 65 है, तो दैट विल गिव द 5 मार्क्स टू द पेशेंट। अगर पेशेंट ऐसा नहीं कर पाता है तो पेशेंट से हम जो वर्ड है उसको बैकवर्ड स्पेल करवाते हैं। अगर उसका बैकवर्ड स्पेलिंग क्या है करेक्ट है तो दैट विल गिव द 5 मार्क्स टू द पेशेंट। अगर क्या है कि जो बैकवर्ड की जो स्पेलिंग है वो क्या है कि आगे पीछे है, उसने प्रॉपर वे में स्पेल नहीं की है, तो इन दैट टाइम यू कैन डिडक्ट द मार्क्स ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट है कि डिलेड वर्बल रिकॉल। डिलेड वर्बल रिकॉल में क्या है कि जो हमने रिकॉल में पेशेंट को 3 वर्ड्स दिए थे बॉल फ्लैग ट्री, हम फिर से पेशेंट से क्या कहते हैं उनको रिपीट करें। अगर वो करेक्ट वे में रिपीट कर देता है, वही वर्ड बोलता है 3 के 3, तो पेशेंट कितना स्कोर मिलेगा उसको 3 मिलेगा। नेमिंग में क्या है कि हम पेशेंट को 2 आइटम्स दिखाएंगे जो हमारे हाथ में होगी, फॉर एग्जांपल वॉच और पेंसिल्स हैं। अगर वो करेक्ट वे में बोलता है कि दिस इज अ वॉच और दिस इज अ पेंसिल, इन दैट टाइम पेशेंट विल स्कोर 2 मार्क्स। अगर उसका आंसर गलत होते हैं तो दैट विल डिडक्ट द मार्क्स। रेपिटेशन में क्या है कि हम पेशेंट को कुछ लाइन कहने को बोलेंगे, अगर वो सेम टू सेम वे में रिपीट करता है तो दैट विल स्कोर 1 मार्क्स। 3 स्टेज में कमांड में क्या होता है कि हम पेशेंट को 3 टाइप की कमांड देते हैं कि टेक अ पेपर इन देयर हैंड, फोल्ड द पेपर और पुट द पेपर ऑन द फ्लोर। अगर पेशेंट क्या करता है कि फॉलो करता है दिस 3 स्टेज कमांड तो पेशेंट गेट 3 मार्क्स। नेक्स्ट है कि रीडिंग। रीडिंग के लिए क्या है कि हम एक लाइन लिखेंगे एक पेपर पे, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वी राइट द क्लोज योर आइज। तो पेशेंट क्या करता है कि सेम वैसी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, अपनी आंखें बंद कर देता है, इन दैट टाइम ही और शी विल स्कोर 1 मार्क्स। और नेक्स्ट क्या है कि हियर रीड इट प्रॉपरली, सेम टू सेम यही है। तो नेक्स्ट है कि राइटिंग में क्या है कि हम पेशेंट को कुछ लिखने के लिए बोलेंगे। अगर पेशेंट क्या करता है अच्छे से लिखता है, उसमें सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और उससे सेंस बनती है, तो द ही और शी विल स्कोर 1 मार्क्स। कॉपिंग में क्या है कि हम पेशेंट को दो 1 डायग्राम्स देंगे, दिखाएंगे और उसको बोलेंगे कि सेम टू सेम आपने ऐसा डायग्राम क्या करना है, ड्रॉ करना है, और अगर वो सेम होगा, इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो दैट विल स्कोर 1 मार्क्स। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एमएमएससी। सिंगल कट ऑफ हमारा कितना रहता है कि लेस देन अगर 24 है दैट कंसिडर एबनॉर्मल, और रेंज क्या है कि अगर लेस देन 24 है इंक्रीज्ड ऑर्स टू डिमेंशिया, डिमेंशिया की तरफ जा रहा है पेशेंट। अगर ग्रेटर देन 24 है तो इसका डिमेंशिया कम हो रहा है पेशेंट का। और एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं कि एबनॉर्मल फॉर 8th ग्रेड एजुकेशन के लिए लेस देन 20 अगर स्कोर है दैट इज एबनॉर्मल है। अगर पेशेंट
पेशेंट का स्कोर एजुकेशन लेवल क्या है, हाई स्कूल एजुकेशन लेवल है तो लेस देन 23 इज एब नॉर्मल फॉर दैट पेशेंट। अगर लेस देन 24 है और पेशेंट का एजुकेशन को लेवल्स कॉलेज लेवल है तो दैट इज़ ऑल्सो एब नॉर्मल टू द पेशेंट। बट मेनली हम इसको क्या करते हैं, हम इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है कि अगर 24 से 30 के बीच में स्कोर है देर इज़ नो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट टू द पेशेंट। अगर पेशेंट का स्कोर क्या है 18 टू 23 है देर इज़ ए माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। अगर लेस देन 17 है तो दैट इज़ द सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट टू द पेशेंट। सो ये था मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में। अब आने वाले टॉपिक में हम इसी तरह से कुछ साइकेट्री के टॉपिक करेंगे और कुछ अनदर जो आजकल की डिमांड है टॉपिक उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल और वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।